Good morning students. Today we are going to discuss the revision video based on the chapter controlling students. Controlling chapter consists of students 5 marks, but sometimes it can also consist a question of 6 marks students. It varies students. The marking scheme of controlling is varies. It will be 5 marks or 6 marks, not more than that, not less than that. So students, today we are going to discuss the topic controlling. I have already given you the PowerPoint presentation relating to controlling students, already given you the notes, already given you the short notes to students, and I have already discussed the short exercises with you students. Now let's discuss the controlling process. Students, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning is the first function and controlling is the last function of management. Right students, planning के अंदर हम क्या करते हैं? Planning is the base function of management because in planning we have to make the plans and policies. Right? Now what do you mean by the term staffing? Staffing means right man, right job, right time, right place. Recruitment and selection of employees. This chapter we have already discussed students. Organizing के अंदर students we have defined as resources, arrangement of resources and authority responsibility relationship has to be made. Now directing is the heart of management process, staffing is the key of management process and organizing is the resource function of management process and planning is the base function of management process. Directing means telling your employees what to do and then seeing that they do it in the best of their ability. That comes under students directing. Now today we are going to discuss the revision video of the topic controlling. Student controlling. Controlling is the last function of management in which plans and policies has to be converted into goods and services. It has been checked under controlling process. मैनेजर कंट्रोलर एक हर कंपनी फैक्ट्री फर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट किया जाता है स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम दैट मैनेजरियल कंट्रोलर हैज़ टू चेक that events conform to plans, work are going out as per the plans, right students? That comes under controlling. So controlling is supposed to be the checking function, right students? As I told you earlier, it is the last function of management students. It is partially correct. It's only partially correct because it completes one cycle and starts the other cycle. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling. Up till controlling, it completes one cycle and then again planning, organizing, staffing, directing and controlling. So controlling completes one cycle of management process and starts the other cycle through planning, organizing, staffing, directing and controlling. I hope students this is very much clear to you. So let's discuss the controlling, the meaning of controlling students. Before discussing the meaning of controlling, let me remind you about the 5 words. 5 words को आप बहुत ध्यान में रखेंगे. The very first word is standard, then actual performance, then comparing standard with performance, then analyzing deviation, then taking corrective action. I repeat students, the very first is standards, then actual performance, then comparing actual performance with the standards, then analyzing deviation and then taking corrective action. Now students, controlling के अंदर लेट डिस्कस वन बाय वन. स्टैंडर्ड, मैनेजर कंट्रोलर ने वर्कर को कितने गुड्स बनाने के लिए, दैट इज समथिंग दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड. इट मे बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, राइट स्टूडेंट्स, बट बेसिकली इट विल बी डेली स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द कंपनी विल फॉलो द डेली स्टैंडर्ड्स. एक्चुअल परफॉर्मेंस, 3 ही कंडीशन होंगी स्टूडेंट्स. कम वर्कर्स या तो पूरे गुड्स बनाएंगे या कम बनाएंगे या ज़्यादा बनाएंगे, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. Now come to the third one students, comparing standard with performance. कितने दिए थे, कितने बनाए, उसको मैनेजर कंट्रोलर कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर चेक करेगा, राइट स्टूडेंट्स. देन टेक आउट द डेविएशन. डेविएशन मीन्स डिफरेंस. इफ देर आर 3 कंडीशन स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, या तो गुड्स पूरे बनेंगे या कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे. अगर गुड्स पूरे बनते हैं तो कोई डिफरेंस ही नहीं है स्टूडेंट्स, देर इज नो डेविएशन. डेविएशन मीन्स डिफरेंस. अगर गुड्स ज़्यादा बनते हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन. कंपनी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंपनी कैन रिवाइज द स्टैंडर्ड्स. वो टाइम लिमिट थोड़ा सा और कम कर देगी या स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स और बढ़ा देगी उसी टाइम लिमिट में. लेकिन अगर डेविएशन कम है, यानी कि 100 गुड्स बनाने के लिए दिए और वर्कर ने 100 गुड्स से कम बनाए, दैट इज सपोज टू बी द नेगेटिव डेविएशन. नो, सो अंडर नेगेटिव डेविएशन स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव डेविएशन होता है उस कंडीशन के अंदर
द स्टैंडर्ड्स आर टू बी रिवाइज और मैनेजर कंट्रोलर हैज़ टू चेक कि वो नेगेटिव डेविएशन क्यों आया। अगर सपोज करिए कि 100 गुड्स बनाने के लिए दिए हैं और वो गुड्स 100 से कम बने हैं, देन मैनेजर कंट्रोलर अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस फाइंड आउट वाई द प्रोडक्शन इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, वाई देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डिफरेंस क्यों आया, वो काम करेगा वो टेकिंग करेक्टिव एक्शन में। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, all the things we have to discuss in the controlling chapter. Let's discuss the controlling function now, students. Controlling function can be defined as comparison of actual performance with planned performance. Plan means standards, actual performance का comparison करना. If there is any difference or deviation, then find the reason for such difference and then taking corrective action. पॉजिटिव डेविएशन अगर आते हैं कि 100 दिए ज़्यादा बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 100 दिए 100 बनाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 दिए 90 बनाए दैन या 95 बनाए दैन देयर इज अ डिफरेंस. So manager controller under controlling process finding the reason for such difference and then taking corrective measure. I hope this is very much clear to you, students. Now come to the next point. Features, nature of controlling. Now what do you mean by feature or nature of controlling? Of course, students, controlling is a goal oriented function. Features, all the 5 functions of management, there are 3 features which are going to be same. वो आप प्लानिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी, स्टाफिंग के अंदर भी, डायरेक्टिंग के अंदर भी और कंट्रोलिंग के अंदर भी. ऑल द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देर आर 3 कॉमन फीचर्स. फॉर एग्जांपल गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूअस. गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूअस, दीज आर द 3 फीचर्स. आप पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर्स लिख सकते हैं. इट इज़ नियर अबाउट द सेम, क्योंकि पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मेन काम गोल ओरिएंटेड है और ये परवेसिव है और ये कंटिन्यूअस है. सो लेट्स डिस्कस. Controlling is a goal-oriented function as its main aim is to ensure that resources are used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. Resources are used effectively and efficiently. Second point, controlling function is a pervasive function, students, right? Pervasive means required everywhere, all levels of management as well as in all departments. So controlling function of management is a pervasive function. Managers at all levels of management need to perform controlling function to keep a control over activity in their areas. Right, students? Moreover, controlling is required business and non-business organization. Students, जहाँ पर controlling होगी, right? जहाँ पर planning होगी वहाँ पर अपने आप controlling होगी. जहाँ पर planning होगी वहाँ पर अपने आप controlling होगी. I hope, students, this is very much clear to you. Controlling should not be misunderstood as the last function of management. This I told you earlier also, students. This I told you earlier, right? Controlling completes one cycle and starts the other cycle. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling. That again, controlling should not be misunderstood as the last function of management. It is a function that brings back to the planning function. Thus, controlling only completes one cycle of management process and improves planning in the next cycle. Fourth point, students. Controlling improve future planning by providing information made from past experience. देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी. प्लानिंग का फ्यूचर में करते हैं प्रेजेंट के लिए. राइट स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग आर द सेपरेबल इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. इनको अलग नहीं किया जा सकता. प्लानिंग के अंदर आप प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर आप उसे चेक करते हैं. सपोजिंग स्टूडेंट्स, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप कंट्रोलिंग में चेक क्या करेंगे, और सपोज स्टूडेंट्स अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेक करने वाला कौन होगा. राइट, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. एक तो आप इसे समझिए, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. प्लानिंग आप प्रेजेंट में करते हैं, आज करेंगे प्लानिंग अपने फ्यूचर गोल्स, टारगेट, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए. सो प्लानिंग इज अ प्रेजेंट में, प्लानिंग इज अ फ्यूचर फंक्शन बट हैज़ टू बी डन इन प्रेजेंट. कंट्रोलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग के अंदर आपको प्लानिंग को चेक करना होता है एज पर द प्लान्स. राइट स्टूडेंट्स, सो कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन मेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. अब यहाँ पर मेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, मेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हुआ है कि लास्ट ईयर आपने जो प्लान्स बनाए थे उसमें यू हैव अचीव्ड 5 लाख रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. अब आप जो नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर अब आप जो प्लानिंग बनाएंगे, आप अपना प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर रखेंगे. नेचुरल सी बात है, बिजनेसमैन ऐसे ही करेगा. तो स्टूडेंट्स, जो कंट्रोलिंग हुई थी वो लास्ट टाइम वो 5 लाख के बेस पे हुई थी. जो अब कंट्रोलिंग होगी वो एट प्रेजेंट जो आप 5 लाख से ऊपर का टारगेट रखेंगे उसके बेस पे होगी.
I hope it is very much clear to you. So, fourth point is clear now. Come to the fifth point. Controlling is both backward looking as well as forward looking function. It is backward looking function as it compares actual परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. कितने दिए थे, कितने बनाए, तो इसे बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन हो गया. एक वर्कर को हमने 100 गुड्स दिए थे बनाने के लिए, उसने 90 बनाए. सो स्टूडेंट्स देखिए देयर इज अ डेविएशन, डिफरेंस आ गया, नेगेटिव डिफरेंस आ गया, प्रोडक्शन कम हुआ है. सो इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. अब इट इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. अब उन 10 का डिफरेंस को दूर करने के लिए व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड बाय द मैनेजरियल कंट्रोलर, वो फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि वो आगे चलकर इस चीज़ को देखेगा. अब वो उस वर्क के ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा कि वो जो 10 डिफरेंस आए हैं नेगेटिव, वो क्यों आए. सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन में वो ये हर एक वर्कर का वर्क चेक करेगा. पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि जितने दिए उतने से ज़्यादा बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने दिए उतने बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने दिए उससे कम बनाए वो चेक हो गए. ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन हो गया. अब फॉरवर्ड लुकिंग में वो आगे चलकर इस चीज़ को दूर करेगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन बाय द मैनेजर कंट्रोलर कि वाई द डेविएशन इज नेगेटिव, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द रीजंस द मैनेजर कंट्रोलर हैज टू सर्च आउट. नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग helps in achieving organizational goals. Of course, the main aim of controlling process is to achieve the organizational goals, right students? Manager controller under controlling process check karega that work is going according to plan, right? The work is going on the right track so that the organization goals can be achieved. So controlling is a goal oriented process. It involves taking corrective action, and as in case of any deviation or difference, right students, through controlling attempt is made to keep the activities on the right track so that organization goals can be achieved. I hope this is very much clear to you. The very first importance of controlling is helps in achieving organizational goals, right? All the attempts has to be made to keep the activities on the right track, that work is carried out as per the plans. Second, judging accuracy of standards. In controlling process, a good control system keeps a check on the changes takes place in the business environment. व्हाट आर द चेंजेस, अगर कोई चेंजेस होते हैं बिजनेस के अंदर या बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो मैनेजर कंट्रोलर उसको चेक करेगा अंडर कंट्रोलिंग सिस्टम और अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेगा. स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स व्हाट आर द गोल, टारगेट, प्रॉफिट, राइट? एंड द स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो मेजर्ड कि हमें वर्कर्स को डेली कितने गुड्स देने. एज पर द चेंजेस हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजर controller has to revise the standard as and when required. It depends upon the changes taking place in the business environment. 5M का maximum use students, making efficient use of resources. 5M means man, machine, material, money and method. So controlling helps to minimize wastage and spoilage of resources. It ensures that every activity is performed according to standards. As a result, resources are used in the most effective and efficient manner. 5M means man, machine, material, money, method. इनका maximum uses students controlling process के अंदर ही होगा. Improves employee motivation, right students? Of course, manager controlling function keeps on check the performance and judge the performance of each and every employee working in the organization. So under fourth point students, जब हर एक वर्कर को ये पता है कि उसका वर्क कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर चेक होगा, डेली की रिपोर्ट उसकी जाएगी मैनेजर कंट्रोलर के पास, तो मोटिवेट होकर काम करेगा कौन? एम्प्लॉय. विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस. Right students, employees also know the standards against which their performance will be judged. It encourages them to give better performance because employees can know कि जो भी उन्होंने जो standards उन्हें दिया गया है उसके बेस पर उन्होंने कितने गुड्स बनाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस बाय द मैनेजर कंट्रोलर. सो इट एनकरेजेस देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. इसमें स्टूडेंट्स दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, ऑर्डर और डिसिप्लिन. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स देयर आर टू प्रिंसिपल्स, आपने पढ़े हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में, ऑर्डर and discipline. Order means material order and social order. You have already understood, you have already studied material order or social order. A place for everything and everything in its place. A place for everyone and everyone in its right place. That comes under order. Discipline, smooth running of a business require discipline. So under controlling process, both the principle must be followed of the Henry Fayol. Henry Fayol के दोनों principles followed होंगे, that is order and discipline. I hope this is very much clear to you students. Discipline means smooth running of a business require discipline. Order का मतलब होता है material order, एक social order.
a place for everything and everything in its place, a place for everyone and everyone in its right place. So a good control system makes an atmosphere of order and discipline in the organization. Controlling keeps a continuous check on employees to minimize the activities like theft, dishonesty, corruption, etc. Helps in minimizing error. Next point. Of course, students, helps in minimizing errors means it is the responsibility of a managerial controller with the help of effective system. जितने भी errors हैं उनको कम किया जाता है. Right? Because controlling keeps on continuous monitoring and checking the standards and working of the employees and deduct the deviation difference and then taking corrective action so that the errors can be minimized. That all can be done under controlling process. I hope the student this is very much clear to you. So let's discuss the next topic under controlling process, that is students, the next process is controlling process. It is very much important students. ये बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आता है. So let's discuss the controlling process. Of course students, it is a process. ये एक प्रोसेस है. इसकी सब हेडिंग को आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे. आपको ये लाइन वाइज याद करना है. You have to learn, write in your exam as per the series because it is a process. किसी भी टॉपिक का प्रोसेस आता है, फंक्शन आता है, राइट स्टूडेंट, स्टेप्स आते हैं, तो डोंट चेंज द सब हेडिंग बिकॉज स्टेप्स, प्रोसेस और फंक्शन सीरीज वाइज चलते हैं और सीरीज वाइज याद किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट स्टेप अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स को सेट करना. स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स. क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप जानते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर 100 गुड सेट किए गए हैं तो वो कॉस्ट, उनकी कॉस्ट देखकर, रेवेन्यू देखकर, सेल्स को देखकर और कितना टाइम लगता है एम्प्लॉयज़ को, ये देखकर क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स. क्वांटिटेटिव टर्म्स में आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, मैनेजर कंट्रोलर जो वर्कर्स के लिए डेली, वीकली, क्वार्टरली या मंथली स्टैंडर्ड सेट करेगा, वो सेट करेगा. व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड? द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, कॉस्ट, पर यूनिट गुड की कॉस्ट के हिसाब से, रेवेन्यू, प्रॉफिट कितना होगा, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड हो सकती हैं सेल्स के हिसाब से, और टाइम टू बी स्पेंड, कितना टाइम लगेगा, राइट स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, यू नो इट वेरी वेल. अंडर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स. द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स इज इम्प्रूविंग द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, इम्प्रूविंग लेबर रिलेशंस, इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, राइट. उसकी क्वालिटी किस तरीके से रखनी है, राइट. Qualitative standards consist of improving reputation of the firm, improving labor relations, improving motivation level of employees. I hope student that is very much clear to you. So let's discuss the very first step that comes under controlling process. The very first process, student, setting up of target standards. Standards are the criteria against which actual performance can be measured. These standards should be clearly defined, must be understandable and realistic in nature. Standard ऐसे सेट करने चाहिए जो कि वर्कर्स अचीव कर पाए. Standards can be set in both quantitative as well as qualitative terms. In quantitative terms, standards are expressed in terms of cost to be incurred, revenue to be earned, units to be produced and sold, time to be spent in performing a task. These are said to be the quantitative terms. Under qualitative terms, students, improving goodwill and motivation level of employees. The standard must be revised from time to time, keeping in mind the changes in the business environment. We have discussed this earlier students. Standards हम time to time revise कर सकते हैं, keeping in mind the changes of the business environment. As per the business environment जैसे change होगा तो standard भी वैसे change हो सकता है. I hope student this is very much clear to you. This is known as qualitative terms. Now come to the second one, measuring of performance. अब स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस इज मेजरिंग परफॉर्मेंस. फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपनी ने स्टैंडर्ड्स सेट कर लिया, क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी. अंडर सेकेंड प्रोसेस दैट इज नोन एज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अब स्टैंडर्ड्स वर्कर्स को दे दिए गए हैं, वर्कर विल वर्क एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड द मैनेजरियल कंट्रोलर विल मेजरिंग द परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोलर कैन बी डन इन 3 ways. वेरी फर्स्ट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन. प्रोडक्शन रूम में जा जाके देखेगा वो कि वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं.
देन सैंपल चेकिंग, बीच में से एक सैंपल उठा लेगा जो एक वर्कर बना रहा है और उसे चेक करेगा, अगर वो सही है तो ये मान के चलते हैं कि बाकी सैंपल्स उस वर्कर के सही होंगे। फिर वो सिमिलरली नेक्स्ट वर्कर के पास जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन चेक कर सकता है या टोटल प्रोडक्शन में से भी कोई सैंपल लेकर चेक कर सकता है, राइट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट यू नो इट वेरी वेल स्टूडेंट्स, जो शाम तक आ जाएगी एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजरियल कंट्रोलिंग के पास। सो दीज आर द थ्री स्टैंडर्ड्स, दीज आर द थ्री मेजर्स, दीज आर द थ्री मेजर्स जिसमें कि मैनेजरियल कंट्रोलर चेक कर सकता है परफॉर्मेंस वर्कर्स की against the standards. So once the standard has been established, the second step is to measure the actual performance. It can be done easily using several techniques like person observation, sample checking, performance report, etc. While measuring performance, both quantitative as well as quantitative aspects should be considered. I hope student this is very much clear to you. Now come to the third one. Compare करना, कितने दिए थे कितने बनाए। थर्ड स्टेप के अंदर मैनेजरियल कंट्रोलर कंट्रोल करेगा कि गुड्स कितने दिए थे और कितने बनाए। So compare performance with standards. After measuring the performance, the manager compares the actual performance with the planned performance and standards. Right, students? If there is match in both the controlling function and so on, ends there only. Students, जितने दिए थे उतने ही बनाए। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये होता है कि 100 गुड्स दिए थे और सारे वर्कर्स ने 100 गुड्स बनाए, तो कंट्रोलिंग फंक्शन थर्ड स्टेज पर ही खत्म हो जाएगा। बट जितने दिए थे उससे कम बनाए या उससे ज़्यादा बनाए, तो उस कंडीशन के अंदर देयर इज मिसमैच। एक जगह पॉजिटिव डेविएशन आ गया, एक जगह नेगेटिव डेविएशन आ गया। पॉजिटिव डेविएशन को हम छोड़ देंगे, राइट स्टूडेंट्स। वहाँ पर हमें ये ज़रूरत होगी कि अगर मान लीजिए 100 बनाए और वर्कर्स 105 107 बना रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर टू बी मेजर्ड, तो उस कंडीशन के अंदर मैनेजरियल कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है कि लेकिन यहाँ पर अगर कम बने गुड्स, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, राइट स्टूडेंट। उस कंडीशन के अंदर अंडर दैट कंडीशन द कंट्रोलिंग प्रोसेस मस्ट फॉलो। बट इफ देयर इज मिसमैच और डेविएशन, देन द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। इफ द डेविएशन इज माइनर, देन इट शुड बी इग्नोर्ड, बट इफ द डेविएशन इज मोर, देन टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समझिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर कि 100 गुड्स दिए थे वर्कर्स को। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 गुड्स दिए थे वर्कर को अंडर थर्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। दो वर्कर्स ने, एक ने बनाए 95 और एक ने बनाए 98। तो स्टूडेंट्स 98 वाला डेविएशन कंपनी इग्नोर कर सकती है, मैनेजरियल कंट्रोलर इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वो माइनर डेविएशन है। इतनी मिस्टेक 1% 2% की मिस्टेक चल सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड मेजर डेविएशन कौन सा हुआ स्टूडेंट, जहाँ पर एक वर्कर ने 95 बनाए थे, एक वर्कर ने 98 बनाए, तो डेविएशन 2 का आया अगेंस्ट 100 गुड्स। एक वर्कर ने 95 बनाए, तो डेविएशन 5 का आया एज अगेंस्ट 100 गुड्स। तो जो डिफरेंस जो 5 का आया है, दैट शुड बी टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। एनालाइजिंग डेविएशन, फोर्थ स्टेप स्टूडेंट्स, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन, राइट स्टूडेंट्स। इन कंट्रोलिंग डेविएशन मीन्स डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। डेविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन 100 गुड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 गुड्स बनाने के लिए दिए और 100 से ज़्यादा बन गए। नेगेटिव डेविएशन है जब 100 गुड्स बनाने के लिए दिए उससे कम बने। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द स्टैंडर्ड। नेगेटिव डेविएशन मीन्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। टेबल आप सबको क्लियर हो रही है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यहाँ पर टेबल को बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है 25 क्लोथ्स, यानी कि देयर आर 5 वर्कर्स और सबको 25 क्लोथ्स बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। आप देखिए एक्चुअल, स्टैंडर्ड, देन डेविएशन। एक्चुअल में देखिए और स्टैंडर्ड में देखिए। स्टैंडर्ड सबका सेम होगा क्योंकि स्टैंडर्ड पांचों वर्करों को ABCDE को 25 गुड्स बनाने हैं। एक्चुअल और डेविएशन को जरा ध्यान से देखेंगे। ए ने बनाए एक्चुअल में 25, कितने दिए थे स्टैंडर्ड 25, तो डेविएशन क्या हुआ, 0 हुआ, नील हुआ। डेविएशन मतलब डिफरेंस। बी पे आइए, बी को कितने बनाने के लिए दिए थे 25, कितने बनाया उसने 35 का डेविएशन प्लस में चला गया, यानी कि जितने दिए थे उससे ज़्यादा बनाए। यहाँ पे 25 दिए थे उसने 30 बना दिए, नो प्रॉब्लम। कंट्रोलिंग में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब सी में देखिए स्टैंडर्ड कितना है 25, कितने बना है 20। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर 5 - 5 हो गया। राइट स्टूडेंट्स, डी में देखिए स्टैंडर्ड कितना था 25, कितने बना 28, प्लस में 3 चले गए, 3 चले गए यानी कि उसने 3 ज़्यादा कुछ बना दिए, नो प्रॉब्लम। 18 में देखिए 25, ई में देखिए 25 स्टैंडर्ड था और कितने बना 18, यानी कि 25 दिए थे, कितने कम बना है -7। तो बी और ई, सॉरी सी और ई, बी के भी मोर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी के भी मोर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सी और ई का जो स्टैंडर्ड था 25 का, उससे उन्होंने कम बनाए। राइट स्टूडेंट्स, अब सी और ई की वर्किंग परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा कि उनसे गुड्स कम क्यों बने। और यहाँ पर माइनर डेविएशन सी का है -5, मेजर डिफरेंस ई का है -7। सो सबसे पहले ई के डिफरेंस को देखा जाएगा, उसके बाद सी के डिफरेंस को देखा जाएगा। आई होप दिस टेबल इज वेरी मच क्लियर टू यू। सबसे पहले ई के डिफरेंस को देखा जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंस ज़्यादा है, उसका डेविएशन ज़्यादा है, उसके बाद सी के डिफरेंस को देखा जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। Significant deviation must be paid more attention as compared to minor deviation. In this regard, manager use two techniques of students, that is known as critical point control और management by exception. इन deviations के लिए मैनेजरियल कंट्रोलर कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर दो चीज़ों को यूज़ करता है स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स इसे। नाउ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब मैनेजरियल कंट्रोलर यहाँ पे ये देखता है कि डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग सिस्टम एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है। राइट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग सिस्टम शुड फोकस ऑन की एरियाज ऑन विच परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स। एग्जाम्पल, अ डिफरेंस और डेविएशन ऑफ 5% इन लेबर कॉस्ट needs immediate attention as compared to 20% difference in the postal charges. It means students, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहाँ पर 20% का कोई पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हुए, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना 5% की लेबर कॉस्ट इफेक्ट कर देगी। 20% के पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हुए हैं और 5% की लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या हिट करेगी पहले, क्या इफेक्ट करेगी पहले। 20% के पोस्टल चार्जेस इफेक्ट नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इतने, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट का काम इतना नहीं होता। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो कि लेबर बेस्ड कंपनी है, उसके लिए 5% का हाइक बहुत मायने रखता है। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दिस इज द A टेक्निक दैट इज यूज्ड बाय द मैनेजरियल कंट्रोलर अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस। नाउ B, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Management by exception is the second technique used by the managerial controller. Management by exception के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। Management by exception means if a manager try to control everything, he may end up by controlling nothing. यानी कि वो हर एक डेविएशन को चेक करने लगेगा, हर एक चीज़ को देखने लगेगा, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने लगेगा, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, ऊपर वाली अगर आप टेबल पे देखें, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैनेजर कंट्रोलर चेक तो सारी चीज़ें करेगा, लेकिन वो करेक्टिव एक्शन किस पे लेगा, इसका मतलब ये है। नाउ कम टू द टेबल, बहुत ध्यान से देखिएगा। सी का -5 था, ई का -7 था स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि सी ने 25 की जगह 20 बनाए थे और ई ने 25 की जगह 18 बनाए थे। तो सबसे पहले जो ई है, ये जो ई है स्टूडेंट, सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, इस वर्कर के ऊपर वर्क किया जाएगा, इसका रीजन देखा जाएगा, उसके बाद सी का रीजन देखा जाएगा अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो it means a manager who tries to control everything may end up by controlling nothing. The deviation which are beyond the specific range should only be handled by the manager, and minor deviation can be ignored. Right students, if for example if labor cost is within the acceptable range of deviation, right student, that is 2%, then it can be ignored. However, if it deviates by 15%, that it needs immediate attention of the management. यहाँ पे उन्होंने लेबर कॉस्ट का एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर अगर 2% की लेबर कॉस्ट की हाइक होती है और 15% की लेबर कॉस्ट की हाइक होती है, तो 2% की जो लेबर कॉस्ट की हाइक है वो इग्नोर कर सकती है मैनेजमेंट, वो झेल सकती है मैनेजमेंट, लेकिन 15% की एकदम से हाइक मैनेजमेंट नहीं झेल पाएगी लेबर कॉस्ट की। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर दिया था, देखिए सी और ई में -7 ज़्यादा है और सी का -5 है, तो पहले ई को मैनेजरियल कंट्रोलर पहले ई के वर्किंग परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करेगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेगा, उसके बाद सी के ऊपर।
I hope this is very much clear to you, students. Now come to the last, students, taking corrective action. No corrective action are required when the deviation are within the acceptable limit. Right, students? जो हर एक कंपनी का एक अपना एक्सेप्टेबल लिमिट का डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है, वहां तक अगर डिफरेंस आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स, तो नो करेक्टिव एक्शन आर रिक्वायर्ड. लेकिन अगर मान लीजिए करेक्टिव एक्शन आर रिक्वायर्ड इफ द डेविएशन इज मेजर, नेगेटिव डेविएशन इज मेजर. यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ. सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस. द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. No corrective action is required when the deviation are within the acceptable limit. But if there are deviations, corrective actions are taking such as, अब corrective actions क्या होंगे? मैनेजरियल कंट्रोलर क्या करेगा कि जिससे कि जो नेगेटिव डेविएशन है वो कम हो जाए? देखिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्यूटीज, इंट्रोडक्शन न्यू टेक्निक्स, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, असाइनमेंट ऑफ एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट, परमिशन फॉर ओवर टाइम वर्क, improve the physical condition of work. I hope this student this is very much clear to you. So these are the corrective action of the requirement. अगर डिफेक्टिव मटेरियल है, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल. डिफेक्टिव मशीनरी है, रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीन और रिप्लेस द मशीन इफ इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. ऑब्सोल्यूट मशीन है, देन अंडरटेक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. डिफेक्टिव प्रोसेस है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क है, improve the physical condition of work. I hope this is very much clear to you, students. So अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस आपने पढ़ा सबसे पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, देन मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन थर्ड कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड विद परफॉर्मेंस. उसके अंदर फोर्थ एनालाइजिंग डेविएशन. डेविएशन में आप लोग टेबल देखी और उसमें दो तरीके से एनालाइजिंग डेविएशन था, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. देन कम टू फिफ्थ वन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. राइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ in the next video we will discuss the next part of the chapter, control. If you find any difficulty, you can ask me anytime, students. Do revise the notes, do learn the notes, do revise from this video, students, and also watch my YouTube videos, students. Thank you, students.